জয় বাংলা। বাঙালি ভাইরা, মুসলিম ভাই, হিন্দু ভাই সবাইকে আগে নমস্কার জানাই। একবার আবার বলি জয় বাংলা। আমার ভিডিও দেখার আগে আপনি একটা মহাশয়ের বক্তব্য শুনেন, তারপরে আপনাকে আমি পুরো ডিটেল জানাবো যে ইনি কি করতে চাইছেন, ইনি কার দালাল, ইনি কার বিরুদ্ধে কথা বলছেন। একটু মন দিয়ে শুনবেন। আসুন আগনের ভিডিওটা দেখে নিই। WBCS परीक्षा उर्दू में भी हो इसके लिए ममता बनर्जी से बात करेंगे मंत्री जावेद। ওই মন্ত্রী জাবেদ হচ্ছে জাবেদ খান, ঠিক আছে। এই এদের সব মিটিং হয়েছে, ঠিক আছে, এই উর্দুদের, ঠিক আছে। এই হচ্ছে সেই কলকাতা খেলাফত কমিটি, বোঝা গেল। এই বাংলায় লিখেছে ঠিকই, কিন্তু এখানে বাঙালির কিচ্ছু নেই, শুধু রয়েছে বাংলা ও বাঙালি বিরোধিতা। WBCS বাংলা বাধ্যতামূলকের বিরোধিতা, ঠিক আছে। তারপর আমি দেখাচ্ছি এইখানে যে এই নিউজ আইটেমটা বার করছি, তাড়াতাড়ি দেখে নেওয়া যাবে। এই বার করে রেখেছিলাম, এই देखो बताया गया है, उसी के बारे में हम लोग सब जोड़ रहे हैं, बैठे हैं। इसको लेकर हम लोग ममता बनर्जी के पास भी जाएंगे, बातें करेंगे और इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हल निकलेगा, क्योंकि काली साहब से ममता बनर्जी हमारे मुख्यमंत्री ने खास उनको कहा था कि उर्दू को फिर बहाल किया जाएगा। এবার কথাটা শোনো, এই পাবলিক গুলো কে কে বুঝে নাও, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে জাবেদ আহমেদ খান নামক একটি ব্যক্তি, ঠিক আছে। এই জাবেদ আহমেদ খান এ বাঙালি নয়। এ বুঝতেই পারছো, এখানে একদম বলছে যে বাংলা বাধ্যতামূলক করা যাবে না, উর্দুকে ঢোকাতে হবে। কথাটা বুঝলে? উর্দুকে ঢোকাতে হবে। তাই বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেখানে গিয়ে দেখা করবে। এই যে পাশের পাবলিকটা, এই যে এইটা, ঠিক আছে, এটার নাম হচ্ছে কারি ফজলুর রহমান, ঠিক আছে। এর নাম হচ্ছে কারি ফজলুর রহমান। এ কোন ব্যক্তি? এ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে প্রতি বছর এই বাংলার রাজধানী কলকাতায় ঈদ উপলক্ষে রেড রোডে কলকাতার কেন্দ্রস্থলে যে নামাজ হয় সেটা এ হচ্ছে লিড করে। এও বাঙালি না, এবং এর দাবি এবং সেটা এই জাভেদ আহমেদ খান সেটা রিপিট করলো যে এর দাবি হচ্ছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নাকি একে ব্যক্তিগতভাবে আশ্বাস দিয়েছে যে উর্দুকে ঢুকিয়ে নেওয়া হবে এবং সেটা নিয়েই নাকি মনে করানোর জন্য করবে। এবং এই পুরো নিউজ আইটেম এসব জায়গায় যদি এইসব পেজগুলোতে চলে যাও, ওদের সব মিডিয়া আমরা কিচ্ছু বাঙালিটা ফলো করি না, ঠিক আছে। কি ভয়ঙ্কর জিনিস চলছে শুধু ভাবো। এবং বলছে যে নেতাজি ইন্দোর স্টেডিয়ামে 21 তারিখ নাকি ওদের আরো বড় মিটিং হবে। 21 তারিখ নাকি নেতাজি ইন্দোরে ওদের আরো বড় মিটিং হবে, ঠিক আছে। এবং আমি বলছি, বিশেষ করে মুসলমান বাঙালি, আমাদের জাতির ভাই যারা, আমরা সকলে বাঙালি জাতির ভাই, ভাবতে পারো বাংলার মাটিতে রাজধানীতে ঈদের সবচেয়ে বড় যে নামাজ হয়, যেটা সবচেয়ে বড় জমায়েত যেটা হয়, যেখানে নামাজ পড়ানো হয়, সেখানে যার নেতৃত্বে নামাজ পড়া হয়, যে নামাজের ইমাম, সে বাংলা WBCS বাংলা বাধ্যতামূলক বিরোধী একটা পাবলিক। এর পিছনে কেন কোন বাঙালি নামাজ পড়বে যে ইসলাম ধর্মের অনুসারী? কেন পড়বে? বাংলা পক্ষ স্পষ্ট বলছে, রেড রোডের ঈদের নামাজ বাঙালি মুসলমান ইমাম চাই। শুনেছেন? এনার বক্তব্য হচ্ছে, এনি কিন্তু মুসলমান নয়, এনার নাম হচ্ছে গর্গ চট্টোপাধ্যায়। আমি জানি না এই পড়াশোনা কতটা করেছেন, শুনেছি হার্ভার্ড থেকে ইনি পড়াশোনা করেছেন, খুব ভালো, বেশ ভালো। किंतु मैं समझता हूँ कि हमारा जो बंगाल का जो भूमि है, ये भूमि पवित्र भूमि है। ये
इत्तेहाद इत्तफाक की भूमि है। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई तमाम मिलकर रहते हैं। 1947 से लेकर अब तक किसी ने ज़बान के नाम पे डिवीज़न या बंटवारा कभी भी नहीं हुआ। बंगाल का ये इतिहास रहा है कि यहाँ कभी भी डिवीज़न पॉलिसी नहीं हुआ है। यहाँ पे हमेशा से बंगाल में जो है इसके गौरव को बढ़ाने के लिए हिंदू, मुसलमान, खा वो बंगला जानते हो, हिंदी जानते हो, इंग्लिश जानते हो, तमाम ने मिलकर इसके गौरव को बढ़ाया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि एक ज़माना था जो कहा जाता था वेस्ट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। लिहाजा जो ये दावा करते हैं कि इमाम ईदैन जो नमाज पढ़ाते हैं वो उर्दू नोइंग है, अब जो नमाज पढ़ाएंगे रेड रोड में नमाज ईद और बकर ईद की, वो नमाज कोई बंगाली मुसलमान पढ़ाएगा। तो मैं गोरगो को बता देना चाहता हूँ कि हम मुसलमान को जितनी बांटने की और दूर करने की कोशिश करोगे हम उतना ही करीब आएंगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारा किबला एक, हमारा अल्लाह एक, हमारी किताब एक, हमारी हदीसें एक, हमारा नमाज एक, हमारा ड्रेस एक। हाँ, अब रहा कि जो जहाँ रहते हैं उसके कल्चर को अपनाए। मुझे किसी के कल्चर से कोई बैर नहीं है। तुम्हें ये हक किसने दिया ये कहने का कि जो इमाम ईदैन होगा वो बांग्ला नोइंग इमाम होगा? न अब तक के तारीख में, हिस्ट्री में, इतिहास में कभी भी ये आवाज़ नहीं उठाई, किसी मुसलमान ने आवाज़ नहीं उठाया। तुम क्या मुसलमानों से मुसलमानों को लड़ना चाहते हो? मुसलमानों से मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा करना चाहते हो? कभी भी तुमने ये नहीं कहा है कि अब जितने भी मंदिर हैं उनके पुजारी हिंदी नहीं होंगे, हिंदी बोलने वाले नहीं होंगे, बल्कि बंगाली होंगे। ये तो तुमने कभी नहीं कहा। तुम्हारे तमाम स्टेट्समैन को, इंटरव्यूज़ को और डिबेट को मैंने देखा है, सुना है, लेकिन कहीं पे भी तुमने ये नहीं कहा कि मंदिरों में जो पुजारी होंगे, जो पंडित होंगे, वो बंगला बोलने वाले होंगे। तो इससे तुम्हारे नियत का पता चलता है कि तुम्हारे नियत में खोट है। तुम्हें किसी ने भेजा है, तुम किसी के दलाल बनकर आए हो, बंगाल की सरजमीन को नापाक करने आए हो। मगर याद रखो, तुम्हारा ये प्रोग्राम, ये प्लानिंग कभी भी कामयाब नहीं होगा। महाराष्ट्र में बंगालियों पे अत्याचार हुआ, वहां से जब निकाला जा रहा था तो ये उर्दू बोलने वाले ही थे जिन्होंने 7 पॉइंट में बंगालियों के हिमायत में प्रोटेस्ट किया। जब केरल में बंगालियों के साथ नाइंसाफी हो रही थी, उस वक्त तुम्हारा पता भी नहीं था, तुम कहां सोए थे कुछ पता नहीं है। मगर सेंट्रल कलकत्ता में उर्दू और बंगला बोलने वाले मुसलमानों ने एहतजाज बुलंद किया, चक्का जाम किया। ठीक इसी तरह से जब गुजरात में यह मामला हुआ बंगालियों के साथ, तो उस वक्त हम ये नहीं देखते ये बंगला बोलने वाला है ना उर्दू बोलने वाला है, बल्कि उस वक्त हम ये देखते हैं कि ये हमारे बंगाल का है, ये हमारे भूमि पुत्र है। उसके लिए हमें आवाज उठानी है, जय बंगला। और हम लोग आवाज उठाते रहते हैं। मैं कहता हूं कि आपको जो करना है वो करें, बिल्कुल बंगालियों के हुकूक की लड़ाई लड़ें। हम चाहते हैं कि हर बंगाली IAS, IPS, UPSC में, WBCS में
एग्ज़ाम में कामयाब हो, लेकिन कामयाबी का ये मतलब थोड़ी ना है, बल्कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो कहा, फार्मूला दिया था कि बड़ा होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है किसी को मारा जाए, दबोचा जाए, उसको छोटा किया जाए, कूटा जाए, उसके अंदर नफरत भर दिया जाए, बल्कि बड़ा करने के लिए तुम इतने बड़े हो जाओ कि वो ऑटोमेटिकली तुमसे छोटा हो जाए। आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, क्यों ये कल्चर अपना रहे हो गुंडागर्दी वाला? ये तो गुंडागर्दी यूपी और बिहार का कल्चर है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज। आप तो बंगाल के हो ना। बंगाल के लोग तो सिविलाइज्ड होते हैं। पूरे दुनिया में इसके तस्करे हैं कि बंगाली भौद्रोह है, बंगाली लड़ाई नहीं करते। लेकिन हमने देखा है कभी ट्रेन में, कभी स्टेशन में, कभी किसी दुकान में, कभी किसी पाड़ा में, कभी किसी फ्लैट के नीचे, तुम ऐसे करते हो जैसे कोई गुंडा और मवाली करता है। उस वक्त हमें यह महसूस ही नहीं होता कि तुम बंगाली भी हो। ऐसा तो नहीं कि तुम किसी इशारे पे नाच रहे हो, लेकिन ये नुकसान उसका नहीं है, बल्कि हमारा और आपका नुकसान है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर कहूँगा कि आप अपने हुकूक की लड़ाई लड़ें, लेकिन उर्दू वालों से इतनी दुश्मनी, इतनी नफ़रत मत करें। ये मुसलमान सब एक हैं, चूँकि हमारा नबी एक, हमारा कुरान एक। और रहा खिलाफत कमेटी, तो खिलाफत कमेटी की पहले जा कर के आप इतिहास पढ़ो। ये खिलाफत कमेटी कैसे वजूद में आया, इसके क्या काम थे, और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में इसका क्या किरदार रहा। उसके बाद आप खिलाफत कमेटी पे और हमारे उलमा पे उंगली उठाना, वरना यकीन मानो ये उंगली मरोड़ दी जाएगी। राममोहन राय वो उर्दू जानते थे, और नज़रुल इस्लाम के शेर में, गज़ल में, नज़म में भी उर्दू के वर्ड्स मिलेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर के नज़म में भी उर्दू और फ़ारसी के वर्ड्स मिलेंगे। मेरे दोस्त, उर्दू से दुश्मनी मत करो। ये उर्दू तुम्हारी, हमारी, हम सब की ज़बान है। ये हिंदुस्तान की ज़बान है, ये कहीं बाहर से लाई हुई इम्पोर्टेड लैंग्वेज नहीं है। तो प्लीज़ आप का टारगेट क्या है, उस टारगेट को खुल करके बताएं। और मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर जो है ये मुसलमानों से, जो मुसलमानों के लड़ने की जो पॉलिसी अपना रहे हैं, ये पॉलिसी कभी भी आपकी कामयाब नहीं होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय बांग्ला।